Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Analytical Technique in Plant Sciences, and here in this lecture we are going to start another new topic, that is your absorption spectroscopy. What is that absorption spectroscopy? आमे आज डिस्कशन करमा. तार आगरु मैं कहि रखु चे the nucleotides. This is the Western Odisha's first educational app, so that everyone should get benefited about our nucleotides application, so that share this with your friends as well as with your brothers and sisters, so that everyone should get benefited from the nucleotides application. Okay, so let's start the absorption spectroscopy in details. What is that absorption spectroscopy? Absorption spectroscopy jibar agharu, what is the meaning of this spectroscopy and what is that instrument amko ame discussion karwa ache first. Okay, to study about the emission, absorption of the light as well as other radiation by the matter is known as spectroscopy. Spectroscopy माने काना? That is to study about the emission and absorption of the light and other radiation by a matter. जेतेबेले केनसे भी substance ऊपर light पडुचे, okay, किछि light that absorbed by the matter and किछि light after absorption they are releasing this as light energy जाके कहउछु emission बलिकरी कहउछु, and किछि light they scattered different direction रे light के समाने काना कर दोछन scattered कर दोछन. So आमे स्पेक्ट्रोस्कोपी रे काना डिस्कशन करबार के जाउछो, that is regarding the emission and absorption of the light as well as the different radiation by a matter, that is known as your spectroscopy. Spectroscopy रे हमर गुटे मैटर केते अमाउंट रो एब्जॉर्प्शन करूचे लाइट, केन टाइप रो लाइट के से बेसी एब्जॉर्ब करूचे, केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट के से कम एब्जॉर्प्शन करूचे, ओके, तार बाबद रे हमें डिस्कशन करमा, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोली करी कहउछो. ओके, सिंपली कहि रखुचा जे गुटे मैटर अछि, गुटे सब्सटेंस अछि, तार ऊपर जतले लाइट पडुचे, किछि लाइट से काना करूचे एब्जॉर्ब करूचे, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन किछि लाइट के से काना करूचे एब्जॉर्प्शन कर दोचे, absorption करि साला पर that become excited, and after excitation that release the energy in the form of light form रे किछि energy काना करूचे release करूचे, so that will glow. ताके कहसो हम काम बोली करी, that is known as emission बोली करी कहसो. So किछि light emitted होचे, किछि light absorb होचे, and किछि light after falling on the object ऊपर पड़ला परे किछि light काना करि जाउचे scattered करि जाउचे in different direction, right? That is the characteristic features of the matter. जे मैटर के जेतेबेले लाइट रो प्रेजेंस रे गुटे मैटर के जेतेबेले लाइट हमें पास करौछु से टाइम मेरे तीनटा फेनोमेना होउसे. The first one, that is your absorption, another one that is your emission, and the last one that is your scatter, right? So everything is सब बाबद रे हमें डिस्कशन करूछु केनो, that is in our topic, that is your spectroscopy बोली करी कहउछु. Okay, जेतेबेले हमर when the electromagnetic radiation that meets the matter, जेतेले can be electromagnetic radiation that fall on the matter ऊपर जेतेले पडुचे matter संगे मीट करूचे, okay, the matter may absorb, the matter may emit, or that matter may scatter the radiation. Okay, can be absorption, can be object ऊपर जेतेले light पडुचे, किछि light ता that is absorbed by the object, and after the absorption kichi light that may emitted by the object, or some light that may scatter. Tinta jinis hoche, everything that we have to discuss here in the spectroscopy, right? So suppose this is your light source halla, eta hamara halla light source. Okay, हमें एक गोटे light source हल्ला जेनु हमें light pass कराबार अछि, light pass करा गला, this is your radiation. Okay, when the radiation that meet the object, this is your object or this is your matter जहा के कहूछु, जेतेले कैंसी भी matter ऊपरे light पडुछि, some of the light that is absorbed, किछि light काना हे गला absorb हे गला, okay, and light जदी absorb हे गला, किछि light absorb होला परे they become excited. Observe जेतेले object ता absorb कर द light,
they become excited and they release the energy in the form of light and that will start glowing से काना करबा ग्लो करबाटा स्टार्ट करबा एंड जहा के कहूछ हमें काम बोली करी जे लाइट इज एमिटेड हियर और इता के कहूछ एमिशन बोली करी कहूछ बट when some of the light that fall on the object from the object light काना करी गला स्कैटर करी गला in different direction ताके कहूछ स्कैटरिंग बोली करी कहूछ ओके तीनटा फेनोमेना होसे when the light is fall or when the light is passing through an object okay so absorption spectroscopy माने काना एबे हमें डिस्कशन करबा when a beam of monochromatic light polychromatic light different type रो लाइट्स अछि बट monochromatic light बाबद हमें डिस्कशन करबा monochromatic light माने काना monochromatic light रो माने हला mono माने वन एंड chromatic माने हला कलर गोटे जदि सिंगल टाइप रो लाइट ओके और सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट जते बेले पास थ्रू ए सॉल्यूशन गोटे सॉल्यूशन नला जेनथरे कि हमें मिक्सचर पकेचो और सैंपल नैछो कैन से भी सब्सटेंस नैछो ओके से सॉल्यूशन देकरी जते बेले लाइट पास करूछि राइट जते बेले क्या लाइट पास करूछि मोनोक्रोमैटिक लाइट माने का सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट when a single wavelength of light is passing through an object but object is के हमें इस जगह रे सॉल्यूशन हिसाब से नहीं पारो ओके मोस्टली सॉल्यूशन हिसाब से नहीं जासी तो सॉल्यूशन रे हमें से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पकाला और से पर्टिकुलर मैटर के पकाला जते लाइट पास करूची वी कैन सी दिस the sum of the radiation of the light that will be absorbed किछि रेडिएशन काना हबा एब्जॉर्ब हबा बुझियला and this absorbance will be measured with the help of an instrument that is called as spectrophotometer काना कहला जे हमर जन absorbance माने काना जे how much light is absorbed केते लाइट एब्जॉर्ब हला by the object ताके कहला absorbance and से absorbance हमें मापमा गुटे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट द्वारा ताके कहूछु हमें काम रे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोली करी कहूछु राइट काना कहला when a beam of monochromatic light beam माने गुटे हमर बीम माने इ जगह रे कहि परमा हमें लाइट के हमें जतले भी कहूछु पासिंग करू से बीम दे बीम ऑफ लाइट बोली करी कहूछु ओके और गोटे रे कहि परमा रे ऑफ लाइट बोली करी कहि परमा दिस इज योर बीम ऑफ लाइट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट बट व्हिच टाइप ऑफ लाइट हमें जगह रे डिस्कशन करूछु दैट इज योर मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट का मैं ना कंसीडर करूछु पास थ्रू ए सॉल्यूशन और ए मैटर some of its light or some of the radiation may be absorbed by the object and this absorbance हमें कहा कि यूज करी करी मापी परमा by the spectrophotometer okay and spectrophotometer device जतले देखमा सतर भीतर रे हमर काना थिसी गुटे सैंपल रखवा लागि गुटे हमर कंटेनर टे थिसी ओके ए कंटेनर के कहा जैसे काम बोली दिस इज कॉल्ड एज योर क्यूबेड बोली करी कहा जैसे ओके एंड क्यूबेड रो हम जदी तार देखमा तार विड्थ 1 सेंटीमीटर रहसी मोस्टली राइट तो लाइट हमर पास करूचे लाइट हमर पास कला ओके एंड इटा हला दिस वन दैट इज योर सॉल्यूशन हमें भीतर नै छु एंड सॉल्यूशन रे हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस नै छु एंड से सब्सटेंस केते लाइट एब्जॉर्ब करूची ताकि हमको मापबार अछि एब्जॉर्बेंस न मापबार अछि राइट तो जितले पास करी साला परे हमर से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भितरे गुटे डिटेक्टर लागिथिबा एंड से डिटेक्ट करबा जे केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट बेसी एब्जॉर्ब करूचे इन जन पर्टिकुलर सब्सटेंस अछि सॉल्यूशन रे जन पर्टिकुलर सब्सटेंस अछि से सब्सटेंस ता केते केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट के मैक्सिमम एब्जॉर्ब करूची ताके से मापबा ओके हमें देला सपोज 260 नैनोमीटर ऑफ लाइट देला 280 नैनोमीटर ऑफ लाइट देला एंड किछु गुटे सब्सटेंस नै छु फास्ट हमें 260 नैनोमीटर रे मापी देखला ओके देखला जे 260 नैनोमीटर रे इट इज एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम और टिके चेंज कर देखला ओके वेवलेंथ ऑफ द लाइट हमर इन सोर्स दिया हितिबा केते वेवलेंथ ऑफ द लाइट हमें नमाज तो सोर्स रे में जदी पहला 260 नैनोमीटर मापी देखला तापर 280 नैनोमीटर रे तापर 270 नैनोमीटर रे डिफरेंट वेवलेंथ रे हमें से सॉल्यूशन के पास कराला ओके
तापर हमें डिटेक्टर काना इंफॉर्मेशन दबा जे 260 नानोमीटर से जो एब्जॉर्ब कला कि 280 नानोमीटर रे जो एब्जॉर्ब कला कि 270 नानोमीटर रे जो एब्जॉर्ब कला जिनतर अधिक एब्जॉर्ब करूथबा सेनो कहि परमा जे से पर्टिकुलर सब्सटेंसेस रो एब्जॉर्बेंस केते है जिन जिन वेवलेंथ ऑफ द लाइट के से बेसी एब्जॉर्ब करूथबा that will be the maximum absorbance of that particular substance, right? तो इना में जते बेले मापु छु absorbance can be calculated by using a law that is your Beer-Lambert's law. गोटे law अछि जहा के कहसो हम Beer-Lambert's law बोली करी कहसो, ओके? Beer-Lambert's law के हमें यूज करी करी गोटे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस रो absorbance बाहर करे पारमा, okay? According to Beer-Lambert law, absorbance A is equal to log I0 by I is equal to another formula भी यूज करी पारमा, that is epsilon CL. जिन जगह रे A रो मान हला काना that is your absorbance बाहर कराबर अछि and I0 that is the intensity of the incident light, okay? अमर जन लाइट टा आसला, okay? जन अमर लाइट टा आसला that is your intensity of the incident light and intensity of the transmitted light हमें that is your I नौ छु, okay? okay हमें जेते बेले काना नौ छु intensity of I0 that is your intensity of the incident light, okay? अमर जन light intensity आइछि this one that is your incident light जेंटा before it fall on the solution रे पड़बार आगरु जेंटा रहला that is the I0 that is the incident light जहा के कहउछु intensity केते intensity अछि केन wavelength of the light आसुचे, okay? then बाहरला परे जेन लाइट आसला that is the transmitted light, देखो इन हमर फार्मूला रे देला जे intensity of the transmitted light this one that is your intensity of the transmitted light पास करी साला परे that is your transmitted light, okay? तो हमें I0 नेला एंड I नेला तार लॉग वैल्यू जदी बाहर कराला केन इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें पास करूछु केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट पास करूछु एंड जते बेला बाहरुचे केते वेवलेंथ ऑफ लाइट बाहरला that will detected by the detector of the spectrophotometer, right? तो हमें I0 by I रो log value जदी नमा will get the absorbance केते absorbance असला तार रेशियो बाहर करना कहार I0 by I, ओके? केते इंसिडेंट असला केते ट्रांसमिटेड हला तार रेशियो बाहर करना तार रेशियो रा हमें log value जदी बाहर करमा will get the absorbance, okay? then असला हमर काना that is your another formula में यूज करी परमा this is also is equal to epsilon C, okay? C रो माने हला that is the concentration of the sample जेन सैंपल नला से सैंपल रो कंसंट्रेशन काना अछि अधिका अछि कि कम अछि केते कंसंट्रेशन रे अछि, ओके? सपोज हमें मिक्सचर नला वाटर नला एंड वाटर रे डीएनए मिसै छु सपोज, राइट? तो जतकी अधिका डीएनए नैथिमा सेतकी अधिका हमर काना बाहरबा एब्जॉर्बेंस बाहरबा, राइट? सपोज हम देखमा यदि डीएनए दैट विल एब्जॉर्ब द 260 नैनोमीटर ऑफ लाइट के से एब्जॉर्ब करसी डीएनए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन केते करसी 260 नैनोमीटर, ओके? तो एब्जॉर्बेंस कहार ऊपर डिपेंड करूचे जिन सब्सटेंस सहितमा तार कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करूचे जतकी हम अधिका डीएनए नैथिमा सेतकी अधिका से काना करबा 260 नैनोमीटर ऑफ लाइट के से एब्जॉर्ब करबा के डीएनए कथा पड़ी छे जेने प्रोटीन देखमा प्रोटीन रो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होचे 280 नैनोमीटर जेतले 280 नैनोमीटर पास करामा लाइट जेतले 280 नैनोमीटर लाइट पास करामा एंड से सैंपल रे मन करा मैं प्रोटीन लेछु तो मैक्सिमम 280 नैनोमीटर रे प्रोटीन एब्जॉर्बेंस देखासी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखासी तो हमें एब्जॉर्बेंस मापर लगी जतकी अधिका प्रोटीन नैतवा से सैंपल रे सेतकी अधिका काना शो करबा एब्जॉर्बेंस शो करबा, ओके? तो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन देन एल हला पाथ लेंथ एल माने का पाथ लेंथ केते पाथ से पास कला माने ई जन क्यूवेट रहला ई क्यूवेट रो विड्थ केते रहउचे ई क्यूवेट देखरि पास करू छे तो क्यूवेट रो विड्थ हला केते दैट इज जनरली क्यूवेट ने जैसे 1 सेंटीमीटर रो डिस्टेंस ने है दैट इज कॉल्ड योर पाथ लेंथ, ओके? केते से क्यूवेट के केते देखरि पास करू छे क्यूवेट रो विड्थ के हमें देखु छु
और तार उसार केते रहउचे देखुछु, दैट इज द पाथ लेंथ और दैट इज द एल बोली करी कहउछु। ओके एंड टी रो मान हला ट्रांसमिटेंस, टी रो माने काना दैट इज योर ट्रांसमिटेंस, हमें टी इज इक्वल टू आई बाय आई जीरो बाहर करे पारमा, राइट। ट्रांसमिटेंस केते होचे बाहर कराबार लगी बाहर करी पारमा आई बाय आई जीरो, तो लॉग टी बोली करी लिखा जायसी ए इज इक्वल टू लॉग टी बोली करी लिखा जायसी। दिस इज द बियर-लैम्बर्ट लॉ। ओके देन अच्छा हमर अनदर टर्म दैट इज योर इप्सिलॉन। ओके इप्सिलॉन माने काना देखो, इप्सिलॉन इधर के कहसी मोलार एब्जॉर्प्टिविटी, मोलार एब्जॉर्प्टिविटी, मोलार एब्जॉर्प्टिविटी माने का ओके हाउ स्ट्रांगली ए पार्टिकुलर सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब द पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, गोटे पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट के हाउ स्ट्रांगली ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करूची ताके कहसी मोलार एब्जॉर्प्टिविटी। तो डिफरेंट सॉल्यूशन रो डिफरेंट मोलार एब्जॉर्प्टिविटी देखबार के मिलसे, जेंता के डीएनए रो 50,000 मोलार एब्जॉर्प्टिविटी रहउचे, राइट। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर सब्सटेंस, गोटे पार्टिकुलर सब्सटेंस रो लाइक कांस्टेंट है। एंड मोलार एब्जॉर्प्टिविटी रो माने काना हाउ स्ट्रांगली a particular sample absorb the specific wavelength of light, specific wavelength of light, good specific wavelength of light ki how strongly it is absorbing, that is called as molar absorptivity, and this is vary from sample to sample। जदि मैं डीएनए रो एग्जांपल देली दैट इज 50,000 रहसी, राइट, बट अलगा अलगा जदि सब्सटेंस नमा तार मोलार एब्जॉर्प्टिविटी अलगा अलगा रहसी, बट दिस इज फिक्स्ड और दिस इज कांस्टेंट फॉर ए स्पेसिफिक सब्सटेंस और स्पेसिफिक मैटर, राइट। देखो ई फार्मूला के यूज करी करी हमें बहुत किछि बाहर करी पारमा। जदि हमें सैंपल रो कंसंट्रेशन के इंक्रीज कर देला, देखो A is equal to काना हला epsilon CL, ए माने काना एब्जॉर्बेंस, गोटे पार्टिकुलर सब्सटेंस नेला तार एब्जॉर्बेंस बाहर करउछु, राइट। एब्जॉर्बेंस काहार ऊपर डिपेंड करूछ, दैट डिपेंड अपॉन द मोलार एब्जॉर्प्टिविटी ऊपर डिपेंड करूछ। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार एब्जॉर्प्टिविटी, ताके जदि बढ़ामा बोले एटा भी बढ़बा, बिकॉज़ एवरीथिंग इज प्रोडक्ट हियर, समस्त को इनटू करा हिचे। कंसंट्रेशन जदि बढ़ाला एब्जॉर्बेंस बढ़बा, पाथ लेंथ बढ़ाला एब्जॉर्बेंस बढ़बा। तो काना कहला इफ यू इंक्रीज द सैंपल रो कंसंट्रेशन जदि इंक्रीज कराला तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज एंड द ट्रांसमिटेंस डिक्रीज, बट ट्रांसमिटेंट काना हबा डिक्रीज करबा। ट्रांसमिटेंट दैट इज योर I0 बाय I हमें बाहर करूछु, ट्रांसमिटेंस I बाय I0 बाहर करूछु। ओके I माने काना दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट केते गला ताके कला के वेवलेंथ ऑफ द लाइट गला, दैट इज द intensity of the transmitted light, and transmittance बाहर कराबार लगे I by I0 नउछु। I बेल हला केन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आसला, I0 माने हला सॉरी I माने हला केन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास करला, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, एंड I0 माने हला दैट इज द केन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आसीथिला हमर, राइट। तार रेशियो बाहर करछो दैट इज द ट्रांसमिटेंस। तो हमर ट्रांसमिटेंस जदी बढ़ला, ट्रांसमिटेंस जदि बढ़ला केते बेले बढ़बा, जदि हमर ट्रांसमिटेड लाइट काना हला बढ़ला, ट्रांसमिटेड लाइट बढ़ला, एंड I0 काना दैट इज इंसिडेंट लाइट काना हबार कथा कम बार कथा, इंसिडेंट लाइट रो इंटेंसिटी काना हबार कथा कम बार कथा, आउ इटा बढ़बार कथा, राइट। तो ट्रांसमिटेंस ऊपर केंता रिलेशन रहला जे एब्जॉर्बेंस विल इंक्रीज, बट केते बेले जेतेले सैंपल रो कंसंट्रेशन इंक्रीज करबा, बट ट्रांसमिटेंस काना हबा से जगह रे डिक्रीज करबा, राइट। तबरे असला ई भी इंक्रीज द पाथ लेंथ, जदि हम पाथ लेंथ इंक्रीज कराला देन क्यूबेट रहला, क्यूबेट के जदि जह उसार बनाला द एब्जॉर्बेंस विल आल्सो इंक्रीज एंड ट्रांसमिटेंस से जगह रे काना करबा डिक्रीज करबा। पाथ लेंथ ऊपर देखमा ओके एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस दुटा रिलेशन बाहर करो। Okay, transmittance that is indirectly proportional to the concentration. Transmittance is indirectly proportional to the path length, but absorbance
that is directly proportional to the concentration, and absorbance is directly proportional to the path length. That we have to remember. It question I see. Okay. Next, why the absorption spectroscopy we can use? Why should we use the absorption spectroscopy? Okay, suppose धरी लियो तुमको गोटे मैं सैंपल देली एंड से सैंपल रे मैं तुमको कहली जे फाइंड whether that sample have the DNA or not. Suppose हमको दरकार गोटे सैंपल रे नै जो से सैंपल रे DNA अछि कि नै न हमको जानबार अछि. How can we detect? तो तुम्हें काना करबो? Yes, we can do this. How can we do this? Just हमें काना करबो से सैंपल नै गला मैं जन सैंपल देतले से सैंपल के नै करी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रे पके देला. डीएनए अच्छे कि नाइन जानबार लगी फास्ट हमें डीएनए रो जानबार के पड़बा जे डीएनए केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट के मैक्सिमम एब्जॉर्ब करस तार डाटा আছে मैं तुमको दे देली कहि देली जे यस डीएनए एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट केते दैट इज 260 नैनोमीटर तो मैं गला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भितरे पके देला सैंपल के सपोज सैंपल रे डीएनए अछि एंड तुमे सनो काना कलो फिक्स कलो 260 नैनोमीटर ऑफ लाइट पास कराबार अछि. ओके सनो केते नंबर अछि वेवलेंथ ऑफ द लाइट 260 नैनोमीटर्स जदी पास कराल एंड से जगह रे एब्जॉर्बेंस जदी तुमे कैलकुलेट कलो ओके एब्जॉर्बेंस केते आसबा डिसिजन करमा जदी हमें 260 नैनोमीटर ऑफ लाइट के पास करमा एंड इफ देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डीएनए केते आसबा डिसिजन करमा तार बाबत रे गुटे वैल्यू अछि मैं तुमको कैलकुलेशन करे करी बते देमी राइट जदी 0.6 मोस्टली हमर एससी केते देखो लेट मी शो दिस मोस्टली हमर एससी 0.6 एससी वैल्यूटा एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर रे एब्जॉर्बेंस केते एससी 0.6 एससी 0.6 जदी आसला तुम्हें कहि परबा यस सर दैट इज हैविंग द डीएनए इन दैट सैंपल तबरे हमें आके जाई परमा जे हमको डीएनए के बाहर कराबार छै बोला हमें डीएनए के केंदा करी आइसोलेट करसु तार लगी बायोटेक्नोलॉजी जतले पढमा तार बाबत डिस्कशन करमा ओके तो गुटे सैंपल रे डीएनए अछि कि नाइन जानबार लगी वी कैन यूज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर गुटे सैंपल लेला सतरे प्रोटीन अछि कि जानबार अछि देन वी कैन यूज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओके एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रे प्रोटीन दैट विल मैक्सिमम से एब्जॉर्ब करसे केते दैट इज 280 नैनोमीटर of the light absorb करसे तो 280 नैनोमीटर रे जदी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखौची बेले सनो हमें कहि परमा यस दैट सैंपल हैव द प्रोटीन ओके सो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वी कैन यूज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओके तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करि परमा टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट बाय चेकिंग which color or which wavelength of the light is absorbed केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट से एब्जॉर्ब करूची राइट केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट केन कलर ऑफ द लाइट डिफरेंट वेवलेंथ रो डिफरेंट कलर थिसी है ना तो केन टाइप रो लाइट केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट के से एब्जॉर्ब करूची हमें जानी परमा बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर राइट मेजर हाउ मच इज देयर जदी एब्जॉर्ब कला तबरे सनु कैलकुलेशन करबार अछि नै केते डीएनए सन फिर प्रेजेंट अछि तार कंसंट्रेशन हमें बाहर करम पहला देखला जे यस डीएनए इज प्रेजेंट और नॉट डीएनए जदी प्रेजेंट थिबा तो 260 नैनोमीटर रे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखाबा सेटा हमें बाहर कर दमा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तुमको दे देला तबरे हमें बियरलंबर लॉ के यूज करी तार फार्मूला के यूज करमा एंड सेनु हमें काना कैलकुलेट करि पारमा so now मैं calculate करि परमा how much concentration of the DNA is present in that solution okay good example लेकर डिस्कशन करबा केते concentration of DNA पर present अछि पहला जानला जे DNA अछि but how much concentration of DNA is there in that sample solution that also we can calculate by using the spectrophotometer हुए तो तुमको एब्जॉर्बेंस दे दला एब्जॉर्बेंस पैसाला परे हमें बियरलंबर्ट लॉ के यूज करमा और सदा के यूज करी फार्मूला पुट करमा एंड वी कैन गेट द कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए इन दैट सॉल्यूशन ओके देन स्टडी द केमिकल रिएक्शन वी कैन सी द चेंजेस इन लाइट एब्जॉर्प्शन वेयर रिएक्शन हैपेंस एंड व्हिच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट द रिएक्शन इज हैपनिंग देखो हमें गोटे सब्सटेंस नेला दुईटा सब्सटेंस नेला
एंड फर्स्ट हमें ऐड करला दुई सब्सटेंस के एंड से टाइम रे हमें एब्जॉर्बेंस मापला बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किछि टाइम गला परे देन अगेन कैलकुलेट कला एब्जॉर्बेंस जदि एब्जॉर्बेंस रे चेंज हला मींस सेना से सब्सटेंस काना होचे रिएक्शन एकरे आ किछि नुवा सब्सटेंस तैयारी करिथबा तो दुईटा टाइप रो सब्सटेंस जतेले रिएक्शन करूचन बिफोर रिएक्शन केते एब्जॉर्बेंस शो करूतले एंड आफ्टर रिएक्शन केते एब्जॉर्बेंस समान शो करूछन ओके एंड केते टाइम लागु छे से एब्जॉर्बेंस चेंज हबार लागि माने केते टाइम लागु छे पर्टिकुलर रिएक्शन हबार लागि दैट आल्सो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओके then analyze the mixture if there are many substances in one solution absorption spectroscopy can separate and identify them based on their absorbance pattern जदि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस नै छु प्रोटीन नै छु डीएनए नै छु राइट तो सनो हमर जन डिटेक्टर थिबा से डिटेक्टर कनेक्ट हितबा कंप्यूटर रे एंड कंप्यूटर रे गोटे ग्राफ आसीबा ओके तो सनो जदि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखला 260 नैनोमीटर रे भी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखौचे एंड 280 नैनोमीटर रे भी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखौचे बेले हमें काना जानि पारमा यस दैट सैंपल हैव बोथ डीएनए एंड प्रोटीन डीएनए भी अच्छे प्रोटीन भी अच्छे ओके तो सेनो हमें जानि पारमा जे यस दैट सब्सटेंस is not the pure substance that is the mixture because different substance will use the different wavelength of the light and in different wavelength of the light they have maximum absorbance DNA ro 260 nanometer and protein ro 280 nanometer गोटे सैंपल सॉल्यूशन हला सेतरे हमें लाइट पास करला 260 नैनोमीटर रे एब्जॉर्बेंस देखला मैक्सिमम देखौचे आउट 280 नैनोमीटर नला सनो भी जदी एब्जॉर्बेंस देखौचे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखौचे 280 नैनोमीटर रे बेला हमें कमा जे दैट सैंपल इज नॉट हैविंग ओनली द डीएनए दिस इज आल्सो हैविंग द प्रोटीन ओके तो डिफरेंट सब्सटेंसेस मानकर डिफरेंट एब्जॉर्बेंस बाहर से बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंस विल एब्जॉर्ब डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट ओके फॉर एग्जांपल हाउ टू चेक फॉर ए डीएनए एंड कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन बाय यूजिंग द बियर-लैम्बर्ट लॉ क्वेश्चन आसुबा ओके तुमको गोटे क्वेश्चन दे देथिबा सेतरे एब्जॉर्बेंस दे देथिबा सपोज ओके एंड सनो से पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस देन बाहरला से एब्जॉर्बेंस तो दे देला तुमको बट सनो तुमको कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए बाहर करो बेला गुड एग्जांपल न मायना सपोज वी हैव ए सैंपल एंड you want to know if that contain the DNA and how much DNA is present जे तुमको गोटे सैंपल दिया गला से हमको बाहर कराबार अच्छे जे से सैंपल रे डीएनए अच्छे कि नाइ ना जदि अच्छे हाउ मच डीएनए इज प्रेजेंट देयर तो फर्स्ट स्टेप हमें काना करमा मेजर करमा एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर पहला तुमको भी कहि देली जे डीएनए अच्छे कि ना तुमको मापबार अच्छे तबरे कहली जदि डीएनए थिबा बेले केते अच्छे बाहर कराबार अच्छे राइट वेरी सिंपल तो सिंपली तुमको मैं आगरो कहि दै छै जे डीएनए केते वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करासी 260 नैनोमीटर तो तुम्हें सीधा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं गला सेतरे हमें सैंपल के पके देलना एंड से सैंपल रे केते नैनोमीटर ऑफ लाइट पास कराना 260 नैनोमीटर ऑफ लाइट पास कराना सॉरी ओके so first you need to check if the sample contain DNA then the DNA absorb ultraviolet light at 260 nanometer DNA कितने nanometer of light के absorb कर से 260 nanometer of light that is the ultraviolet light है so we can use a spectrophotometer तो हमें use करवा to measure the absorbance at this wavelength केते wavelength that is 260 nanometer रे केते absorbance शो करू छे हम मापला इन एग्जांपल नउतनु absorbance at 260 nanometer देइ छे तुमको केते माने कर 0.6 absorbance केते बाहरी छे 0.6 बाहरी छे सपोज इस जगह एग्जांपल रे ओके काना कला सिंपली नै गला में सैंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रे पके देला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विल गिव द absorbance value केते देला 0.6 देला suppose and if the sample show the absorbance at 260 nanometer जदि maximum जदि से absorbance show करूचे 260 nanometer रे absorbance जदि बाहरु छी that means it likely to have the DNA इनो काला जना पड़ुचे जे yes that sample will have the DNA because से absorbance show करूची
जदि एब्जॉर्बेंस शो नहीं करूता जीरो बाहरुता बेले आम कहता दैट सैंपल डू नॉट हैव द डीएनए तापर आम चेक करमा जे प्यूरिटी ऑफ द डीएनए यस डीएनए अच्छी बट डीएनए संगे आउ किछि सब्सटेंस अच्छे क्या डीएनए संगे प्रोटीन भी अच्छे क्या लेट्स चेक अबाउट दिस ओके टू चेक द प्यूरिटी सेति लगे हम यूज करमा absorbance as 260 nanometer divided by absorbance at 280 nanometer तार रेशियो बाहर करामा 260 nanometer रे देखि देला केते absorbance बाहरला देन 280 nanometer रे तार absorbance केते बाहर उछि ओके चेक करमा to ensure that the absorbance is due to DNA not other contaminants like the protein जे हमर जे absorbance बाहरला सटा 0.6 जन बाहरला that is due to DNA है कि अदर किछि कंटामिनेंट्स अच्छे सेना लाइक द प्रोटीन भी अच्छे क्या यू हैव टू चेक दिस एंड वी नो दैट प्रोटीन केते एब्जॉर्बेंस शो करसी केन वेवलेंथ ऑफ द लाइट के एब्जॉर्ब करसी दैट इज 280 नैनोमीटर रो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखासी तो जदी प्रोटीन अच्छे कि नै न हमें देखमा तो हमें काना करमा 280 नैनोमीटर हमें से सैंपल के पहले 260 नैनोमीटर पास करैतला एबे दमा केते 280 नैनोमीटर ऑफ लाइट दमा ओके देन 260 रे केते आसीथला एब्जॉर्बेंस 280 रे केते आसला एब्जॉर्बेंस बाहर करामा ओके तो तापरे बाहर करामा 260 डिवाइडेड बाय 280 जति सेता रेशियो पाखा पाखी जदि 1.8 आसला दुई जन का रेशियो जदि पाखा पाखी 1.8 आसला दैट मींस दैट देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ प्योर डीएनए जदि रेशियो टा पाखा पाखी 1.8 आसला तो हमें कमा जे यस दैट इज हैविंग प्योर डीएनए नॉट अदर सब्सटेंस बट जदि रेशियो इज लोअर देन 1.8 जदि रेशियो टा 1.8 रु 260 नैनोमीटर रे केते आसला 280 नैनोमीटर रे केते आसला बाहर कराला एब्जॉर्बेंस दुई जन को जदि रेशियो बाहर कराला लेस देन 1.8 जदि आसे तो सेनो काना चांसेस अछि प्रोटीन थाई पारे बट जदि पाखा पाखी 1.8 आसे ओके ए 260 डिवाइडेड बाय ए 280 जदि हमर पाखा पाखी 1.8 आसे तो हमें कहमा जे दैट इज योर प्योर डीएनए अछि बट जदि 260 डिवाइडेड बाय 280 बाहर कराला एंड दैट इज लेस देन इतार वैल्यू जदि हमर काना बाहरला दैट इज लेस देन 1.8 रु कमी गला 1.8 रु जदि कमी गला इतार वैल्यूटा जदि 1.8 रु कमी गला के तर लगी कमबा इटा जदि बढ़वा बेले इटा कमबा जदि इटा बढ़वा आ इटा कम थिबा इटा बेसी थिबा इटा जदि टिके कमी गला बेले सेनु काना हबा इ रेशियोटा काना हबा कमी जिबा है ना एंड इटा जदि कमला इटा जदि बढ़ुचे बेले 1.8 रु अधिक हबा कि 1.8 हबा हमें 1.8 जदि बाहर उचे प्योर डीएनए अच्छे एंड 1.8 रु जदि कमी गला वैल्यूटा बेले कमा जे देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन्स ओके तो लेट्स सी दिस एग्जांपल लेट्स अज्यूम कला जे नो माने कर 260 रे 0.6 आसला 260 रे एंड 280 रे मन कर 0.33 आसला तो हमें बाहर करमा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.33 केते बाहर बा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.33 हमें बाहर करो ओके यूज योर कैलकुलेटर 0.6 divided by 0.33 there is your 1.81 this is approximately 1.8 hela okay approximately this is 1.8 यदि approximately 1.8 आसे then we can say that there will be presence of pure DNA जदि हम धरिनो इटा बढ़ी वाला 0.6 divided by 0.5 मन करला 0.6 divided by 0.5 हला बेले केते आसला दैट इज योर 1.2 आसला दैट मींस 1.2 इज लेस देन 1.8 केते बेले इटा 0.3 थिला जे 1.8 संगे समान होतला बट इता बढ़े देली बेले 280 नैनोमीटर रे अधिक एब्जॉर्बेंस शो करिছে 280 नैनोमीटर रे भी किछि एब्जॉर्बेंस शो करिছে
बेले सेन प्रोटीन भी थिबार चांसेस अच्छे बोली करी हमर ए वैल्यूटा काना ही गला कमी गला 1.8 रु कमी गला ओके सो एनीवे छाड़ आमे एटा के अबे इग्नोर करो हमर इनो ई एग्जांपल रे बाहरला केते 1.8 मींस देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डीएनए प्योर डीएनए नाउ कैलकुलेट द रेशियो बाहर कराला केते बाहरला approximately 1.81 or 1.82 जहां भी हला since the ratio is close to the 1.8 the sample is mostly having the DNA जेहेतु 1.8 आसला then we can say that the sample will have the DNA question ऐसे केनो the DNA and protein are there suppose गुटे mixture रे DNA अच्छे protein अच्छे but we have DNA थाई पारे protein भी थाई पारे but we have to check whether that is having the pure DNA that is having the DNA or protein okay तो तुमको से जे कहते देला जे रेशियो जदि 1.2 अच्छे 260 280 रो भीतर जदि रेशियो जदि 1.8 अच्छे 1.8 अच्छे बेले हमें काना कहमा यस देयर इज प्रेजेंस ऑफ डीएनए प्योर डीएनए इफ द रेशियो इज लेस देन 1.8 देन यू कैन से दैट देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन राइट सो स्टेप 3 रे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए जानला जे डीएनए अच्छे बट एबे हमें काना करमा डीएनए रो केते डीएनए अच्छे जानबार अच्छे पहला में जानी पकाला जे यस देयर इज प्रेजेंस ऑफ डीएनए बट एबे हमको कैलकुलेशन करवार छै हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए इज प्रेजेंट ओके सो वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए बाय यूजिंग द बियर लैम्बर्ट्स लॉ काना कहू छै A = एप्सिलॉन CL ओके हमको काना बाहर करवार छै कंसंट्रेशन बाहर करवार छै तो इते के यदि हमें जस्ट ये कर दमा C = काना हबा एप्सिलॉन L डिवाइडेड बाय A हवा ओके उल्टी को लगेंगे सॉरी ओके A बाय एप्सिलॉन L हवा ना ओके C = काना हबा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन L हवा ओके कंसंट्रेशन हमको एब्जॉर्बेंस जाना अच्छे एप्सिलॉन भी जाना अच्छे पाथ लेंथ भी जाना अच्छे देखो एब्जॉर्बेंस केते अच्छे 260 नैनोमीटर रे एब्जॉर्बेंस जगह रे बसा देला 0.6 ओके एप्सिलॉन दैट इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द डीएनए एट 260 नैनोमीटर रे केते दैट इज योर 50000 दैट इज फिक्स्ड फॉर द डीएनए 50000 इनटू पाथ लेंथ L path length that is usually 1 centimeter निया जैसे for the standard cuvette बाहर करा माय तर वैल्यू ओके तो हमर वैल्यू यदि बाहर करू छु 0.6 डिवाइडेड बाय 50000 ओके 0.6 डिवाइडेड बाय 50000 ओके इतर वैल्यू बाहरला 0.00012 वैल्यू बाहरला केते 0.00012 ओके तो हमें C = A डिवाइडेड बाय EL नैतिला एप्सिलॉन L नैतिला C = 0.6 डिवाइडेड बाय 50000 बाहर करला दैट इज 0.00 अच्छा कुटे सुन छाडी देली के 0.6 ना 0.6 अच्छा 0.6 बेले मैं से जगह 6 कर देलु चारटा ए सॉरी ठीक अछि इस जगह रे चारटा जीरो आसबा ओके तो इतर वैल्यू आसबा 0.00012 मोल पर लीटर रे हमर बाहरबा मोल पर लीटर okay so this is the value how can we calculate the concentration of the particular substance जदि हमर सब वैल्यू मिली गला हमको ओके एब्जॉर्बेंस हमें मापी देला एब्जॉर्बेंस जदि पाई गला से एब्जॉर्बेंस की यूज करवा ओके एंड concentration of that particular substance हमें केंता करी बाहर करवा that we have discussed here so this is all about the absorption spectroscopy and this is all about your Beer-Lambert law I think you all may enjoy this session if any doubt you can write to us our chat box in the nucleotides app is always available that is 24/7 again I want to remember please share our nucleotide application with your friends as well as your brother and sister anyone who wants to know about the BSc botany courses okay
So please share this with your friends and your intimates. Thank you.